with us Dr. Chandra Singh Jhala ji, who is former Vice Chancellor, Lakulish Yoga University, Ahmedabad, Gujarat. I heartily welcome you, sir. आपका बहुत बहुत स्वागत है. We also have with us Director of Morarji Desai National Institute of Yoga, Dr. I.V. Baswa Reddy sir with us. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, sir. धन्यवाद. धन्यवाद. Thank you. We also have with us Communication and Documentation Officer of Morarji Desai National Institute of Yoga, Mohammad Tayyib Alam sir with us. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, sir. Thank you, Dr. Vandana. अब संस्थान की परंपरा के अनुसार हम प्रार्थना से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे. ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. जैसा कि हमारे दर्शकगण जानते हैं कि हम हर शुक्रवार को एक व्याख्यान श्रृंखला आयोजित करते हैं जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग स्कॉलर्स को बुलाते हैं और वो हमारे दर्शकों को एक विशिष्ट टॉपिक पे व्याख्यान देते हैं. इसी कड़ी में आज हमारे बीच डॉक्टर चंद्र सिंह झाला जी मौजूद हैं जो फॉर्मर वाइस चांसलर लकुलिश योग यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात से हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. ये हमारा सौभाग्य है जो आज आप हमारे बीच पधारे और आज हमारे दर्शकों को व्याख्यान देंगे. आपका पुनः बहुत स्वागत है. और ये हमारे संस्थान के निदेशक महोदय डॉक्टर ईश्वर वी बसवा रेड्डी सर की प्रेरणा और ऊर्जा है कि हम इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर पाते हैं. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर. धन्यवाद. साथ ही मैं संस्थान के संचार एवं प्रलेखन अधिकारी मोहम्मद तैयब आलम जी का भी पुनः स्वागत करती हूँ. वो भी हमारे साथ हमेशा हमारा सहयोग करते हैं. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर. थैंक यू डॉक्टर वंदना. अब मैं संस्थान के संचार एवं प्रलेखन अधिकारी मोहम्मद तैयब आलम जी से आगे की कार्रवाई के लिए अनुरोध करूंगी. सर. थैंक यू डॉक्टर वंदना. Good evening everyone. Friday webinar of Morarji Desai Institute of Yoga has started on 2nd October 2020 as part of Ayush for Immunity campaign and has been organizing since then. It has been organizing successfully. The beauty of the Friday webinar is that it is blessed with not only by eminent experts of yoga but also it has the renowned experts of modern medicine, allied science, diet and nutrition, media, and from many other fields. Today we have with us respected Dr. Chandra Singh Jhala sir, former Vice Chancellor, Lakulish Yoga University, Ahmedabad, Gujarat, who will deliberate upon the topic Health through Yoga. On behalf of Morarji Desai National Institute of Yoga and my own behalf, it's my privilege to welcome you, sir, in the Institute's Friday webinar. Welcome you, sir. Dr. Ishwar V. Basava Reddy, Director, Morarji Desai National Institute of Yoga, is a guiding force behind the successful organization of Friday webinar. It is because of Director Sir's dynamic vision, dynamic leadership, the Friday webinar has completed its 1 year successfully in October 2021. Welcome you, sir, in today's session. I also welcome all the staff, student, social media team of the Institute and social media friends for joining from India and abroad and simultaneously also promoting the event. I have also given the responsibility to say a few words about today's speaker. Today's esteemed guest, respected Dr. Chandra Singh Jhala ji, is the former Vice Chancellor, Lakulish Yoga University, Ahmedabad, Gujarat.
He is a member of Gujarat State Yogasan Board. He has also served as the former director of physical education of Yoga and director of students welfare, Gujarat Ayurveda University Jamnagar and Bhavnagar University Bhavnagar, respectively. He is a chairman, technical committee of World Yogasan Sports Federation. He has attended and organized many national and international seminars and conferences. Now I request respected Dr. Ishwar V. Vasaveddi sir, Director Murarji Desai Institute of Yoga, to say a few words about today's topic. Sir. Om Shanti Shanti Shanti. Today's ST speaker and very close to my heart, and also a very senior yoga professional guiding force, especially in the field of yogasana sport, Dr. झाला साहब. संस्थान में मेरा सहयोगी श्री तायब जी, डॉक्टर वंदना और अध्यापक गण, विद्यार्थीगण और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देश विदेशों से इस वेबिनार में जुड़े हुए सारे योग बंधुओं और मित्रों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार. बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, चेक करें. सबसे पहले मैं आज के वक्ता प्रोफेसर झाला साहब को मैं धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार करके आज ये बहुत मुख्य विषय पर अपना लेक्चर के लिए आपने अनुमति दी. इसके लिए मैं आपको हृदय से आभारी हूँ. पिछले 4 दशकों से ज़्यादा आप फिजिकल एजुकेशन योग क्षेत्र में अपने योगदान दिया है और उनके साथ साथ पिछले 1 दशक से निवृत्त होने के बाद आप ला पुलिस यूनिवर्सिटी को एक यूनिवर्सिटी दर्जा देने के जो कार्य था आपका नेतृत्व में ये हुआ, इसलिए आपको अभिनंदन पात्र है. और आज हमारा जो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि मैं आपके वाणी से बहुत मूल्य बातों को सुनना चाहूँगा, लेकिन हमारा इतना वाइब्रेंट सब्जेक्ट है योगा और हेल्थ, और थोड़ा बैकग्राउंड से कुछ बात हो रहा है, चेक करें. हमारे तरफ से कोई साउंड आ रहा है बैकग्राउंड में. तो ये एक तो है हेयम दुखम अनागतम. सांख्य और योग और बुद्ध सारे ये जानते हैं कि एक बार मानव जन्म लेने के बाद दुख तो कंपल्सन है. इट इज inevitable to avoid the pain or suffering. That's why Buddha said suffering is the fact. तो इसलिए सभी कितने भी बड़े लोग हो, ऋषि मुनि हो, जो योग में नहीं रहते हैं वो हमेशा एक कारण या दूसरा कारण की वजह से दुखी रहते. ये पहले फिलॉसफी है. तो इस दुख को हम
भौतिक रूप से देते हैं, उनको मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज होता है, वह हमका हेल्थ की भाषा परिभाषा भारतीय वैदिकीय शास्त्र में आयुर्वेद ने उसको समधातु समाग्नि समदोष मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय आरोग्य इत्यादि। तो ये बातें वहाँ हमें सुनने को मिलता है। और भी बहुत सारे व्याख्या हैं। जो योग का परिभाषा है वो स्वास्थ्य का जो परिभाषा है, जो मैंने पहले बताया, हमारा तापत्रय में आदि भौतिक ताप, वो भी आदि भौतिक में भी मैनिफेस्टेड डिसीज के बारे में, हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं। लेकिन योग का परिभाषा ये तीनों दुख को निर्मूलन करना है, आदि भौतिक, आदिदैविक, आध्यात्मिक ताप, आत्मिक ताप तो क्लियरली दिया है। तो इसलिए हमें वो तापों को निर्मूलन करने के लिए एक हार्मोनी और इंटीग्रेशन करना चाहिए। इसी को हमने तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश का उल्लेख करते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इन तीनों में हार्मोनी हो गया तो तब हमने ताप से मुक्त हो गया, तो स्वस्थ कहते हैं। इसलिए मैंने ज्यादातर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू योगा, हेल्थ अकॉर्डिंग टू योगा इज हार्मोनी, समत्वम योग उच्यते, हार्मोनी इन ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ, harmony between the all the koshas, panch koshas, may include mind, body, soul, everything, then which helps to overcome the tapatraya, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक ताप। इतना ब्रॉड विषय पर योग के अलावा कोई भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं किया। इसलिए योग का स्थान सारे स्वास्थ्य रक्षण में, मैनेजमेंट में, क्यूर में, जो मॉडर्न मेडिकल हो, आयुर्वेद हो, सिद्धा हो, यूनानी, निसर्गोपचार, ये सारे वैदिकीय पद्धतियां हैं। ये कन्वेंशन हो, नॉन कन्वेंशन हो, ड्रग हो, ड्रगलेस हो, सभी में योग का स्थान है। क्योंकि योग का परिभाषा, स्वास्थ्य का परिभाषा, ये सभी वैदिकीय पद्धतियों से बड़ा है। ये मैंने शास्त्र के उल्लेख करके बता। तो इसलिए हमने जो स्वास्थ्य का परिभाषा लेते हुए तीन चीजें हम हमेशा देखते हैं। एक तो प्रिवेंशन, दुख को दूर करना अलग है, लेकिन दुख तो प्रिवेंट तो कर सकते हैं। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, आगामी कर्म। तो हम तो आने वाला कर्म को सुधार सकते हैं हमारा लाइफस्टाइल से, आने वाला दुख को हम दूर कर सकते हैं अपना सही कर्मों से, कहीं लाइफस्टाइल से। दूसरा है तो अब आ ही गया, संचित हो गया, उसको भी हमने मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको दूर हो सकता है प्रॉपर। और भी आगे बढ़ना है तो हमें सारे दुखों को निर्मूल करना, तो प्रमोशन, हम स्वस्थ है अलग अलग पैरामीटर से, लेकिन अंदर में और भी गहराई में दुख का बीज अंकुर हुआ है। विज्ञानमय कोश में, आनंदमय कोश तक जाना है तो वो प्रारब्ध वहां तक होना है। इसलिए लास्ट में ये सारे एक ही आता है, योग का जर्नी, योग साधन का जर्नी है। इट इज ए डिटॉक्सिफिकेशन, शुद्धिकरणा। इसलिए मैं गुरुजी अयंगार जी को, BKS अयंगार जी गुरुजी को हमेशा याद रखता हूं कि वो भूत शुद्धि और घट शुद्धि, स्नायु शुद्धि, वहां से लेकर पूरा आत्म साक्षात्कार के लिए अष्टांग योग का उल्लेख करते थे गुरुजी। इसलिए हमारा परिभाषा बहुत बड़ा है, लेकिन इस परिभाषा में आज
प्रोफेसर झाला साहब कुछ बिंदुओं पर अपना अनुभव से, अपना ज्ञान से हमें प्रेरित करेंगे, हमारे विद्यार्थियों को और हमारा फैकल्टी मेंबर्स को। और एक बार मैं इस संदर्भ में आप सभी लोगों को हृदय से स्वागत करते हुए प्रोफेसर झाला जी को आज का व्याख्यान देने के लिए मैं निमंत्रण करता हूँ। प्रोफेसर झाला जी। आप अनम्यूट। थैंक यू। Shall I start? हाँ जी सर, हाँ जी। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। My dear brother डॉक्टर ईश्वर बसव रेड्डी जी, आपको कई सालों से मैंने मेरे फैमिली मेंबर जैसे माने हैं। यू आर वेरी मच नियरर, योर प्लेस इज इन माय हार्ट। डॉक्टर तैयब आलम जी, कोऑर्डिनेटर मिसिस वंदना सिंह जी, आप सबका मैं बड़ा आभारी हूं। और ये जान के मेरे को बहुत बड़ी खुशी हुई कि MDNIY रेगुलरली फ्राइडे को इस टाइप ऑफ वर्कशॉप्स और ये गेस्ट लेक्चर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये आपके डायनेमिक डायरेक्टर की ये सुझाव होगा, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन ये बड़ा अच्छा काम है, एक सेवा का काम है और बच्चों का नॉलेज इससे जरूर बढ़ेगा। वेरियस फील्ड्स के एक्सपर्ट्स के अनुभव से ये नॉलेज जरूर बढ़ पाएगा। तो ये आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द डायरेक्टर MDNIY and particularly the coordinator Vandana Singh ji to give me opportunity to share my words with this audience. आज का जो टॉपिक है वो हेल्थ थ्रू योगा, योग द्वारा स्वास्थ्य, ये आज का टॉपिक है। हम शुरू करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राज्वलिरानतोस्मि। योग के अभ्यास से चित्त की शुद्धि होती है, व्याकरण के अभ्यास से वाणी की शुद्धि होती है और आयुर्वेद के उपचार से शरीर की स्वस्थता मिलती है। ये तीनों योग शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र और व्याकरण शास्त्र के रचयिता महर्षि पतंजलि को नमस्कार करते हुए आज का ये वक्तव्य हम शुरू करते हैं। तो योग जो है वो योग शुरू कब से हुआ? तो याज्ञवल्क्य संहिता कहती है कि हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातनः। ऐसा माना जाता है कि योग शास्त्र के ओरिजिनल जो स्पीकर है वो भगवान हिरण्यगर्भ है। साधकों और योगी जनों हमेशा उसकी पूजा करते हैं। ये विभु के नाम से भी प्रचलित है। भगवान ब्रह्मा जी का एक नाम हिरण्यगर्भ है। ऐसे भगवान ब्रह्मा जी ये योग शास्त्र के प्रथम प्रवक्ता माने गए हैं। ऐसे ही विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ये योगेश्वर माने गए हैं और भगवान शिव जी को विश्व के प्रथम योगी, आदि योगी, योगी नाथ माना गया है, जो हमेशा योग समाधि में कैलाश में स्थित रहते हैं। ऐसे हमारे आदि देव ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ये योग शास्त्र के मूल में है, ये हमको जानना चाहिए। ये योग
महाभारत के समय में कुरुक्षेत्र के युद्ध के रण मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, लेकिन समय पसार होने के साथ साथ ये विद्या लुप्त होती गई और बाद में महर्षि पतंजलि ने उसको सिस्टमाइज किया। तो इसलिए महर्षि पतंजलि को अर्वाचीन समय में योग के रचयिता माने जाते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों को 4 पार्ट में बांटा है: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। और महर्षि जी ने अष्टांग योग के 8 स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप योग में जो प्रगति करनी है साधक को, ये प्रगति हर एक जीव को करनी है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि, ये जो धारणा, ध्यान और समाधि या 6ठा, 7वां और 8वां स्टेप है वो साधकों के लिए वो। लेकिन जब तक ये हमारा टॉपिक का प्रश्न है कि योग द्वारा स्वास्थ्य, तो योग द्वारा स्वास्थ्य में अष्टांग योग के शुरुआत के जो 4, खास करके यम, नियम, आसन और प्राणायाम, उसके अभ्यास से स्वस्थता कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में। और योग विद्या जो है वो ब्रह्म विद्या मानी गई है। ऐसा कहा गया है, सा विद्या या विमुक्त। योग ऐसी विद्या है जो मानवी को ऊर्ध्व गति प्रदान करती है, जो व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष के मार्ग दिखाती है, इसलिए इसको ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। योग विद्या को मोक्ष की साधना भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कर्म योगी कर्म करने वाला, ज्ञान योगी ज्ञानी अचीवर ऑफ द नॉलेज एंड भक्त योगी भक्त, ये तीनों से योगी को महान माना। तपस्वी भो अधिको योगी, ज्ञानी भो अति मतोब्धिकः, कर्मे प्यसाधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। इसलिए अर्जुन को योगी बनने का कहा है कि ये जो कर्म करने वाला, ज्ञान प्राप्त करने वाला या तपस्वी से योगी बनना ज्यादा अच्छा है। और योगाभ्यास से स्वास्थ्य कैसे बढ़ता है, तो योग की ये महत्ता है कि योग से शरीर फिट होता है, शरीर चुस्त बनता है। योगाभ्यास से शरीर स्वास्थ्य सुधरता है। योगाभ्यास से शरीर की नाड़ियां जो है वो क्लीन, इसलिए तो नाड़ी शुद्धि बोलते हैं, नाड़ियां क्लीन होती है। और योगाभ्यास से मन शांत हो जाता है। जो समत्वम योग उच्चते कहा है, वो समत्वम मीन्स बैलेंस, बैलेंस ऑफ माइंड। मन की जो समतोलन है वो योगाभ्यास से ही प्राप्त कर सकते हैं। और योगाभ्यास से व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो हो सकता है। लेट अस सी व्हाट इज हेल्थ। स्वास्थ्य क्या है? हेल्थ, वेलनेस, वेलनेस क्या है? हमारे गुजराती में पहलू सुख तेज जाते नरिया, हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है। ये योग शास्त्र के अभ्यास से, योग के अभ्यास द्वारा शरीर स्वस्थ तो रहता है, लेकिन वो स्वास्थ्य मेंटेन भी योग के अभ्यास से हो सकता है। और रोगों से छुटकारा भी योग के नियमित अभ्यास से मिल सकता है। आरोग्य परम भाग्यम, स्वास्थ्यम स्वास्थ्य साधनम। निरोगी होना परम भाग्य है और अच्छे स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। स्वस्थ शरीर को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर के बिना व्यक्ति जीवन का कोई आनंद नहीं ले सकता। भारतीय संस्कृति में 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। ये संसार के सभी जीव के लिए हैं, लेकिन धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ
मानव जीवन के लिए है और मानव शरीर में ही बुद्धि दी गई है, इसलिए बुद्धि से ये सब का आचरण कर सकते हैं। 84 लाख योनि शास्त्र में बताई गई है। पद्म पुराण में शिव जी ने बताया है कि मनुष्य योनि सब योनियों में श्रेष्ठ है, कई जन्मों के बाद ये योनि मिल सकती है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा है। ह्यूमन बॉडी इज टूल टू रिलीजन, विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बॉडी वन कैन डू साधना। अन्य कोई योनि में ईश्वर की साधना प्राणोपासना नहीं हो सकती। 3 चीजें दुर्लभ मानी गई है, हिंदुस्तान में जन्म, मानव काया और सदगुरु की प्राप्ति। हमको तो ये तीनों मिल गए हैं। गुजराती में एक भजन है, मोंघो मनुष्य देह फरी फरी ने नहीं मळे वारंवार, भाई तुम भजी लेने कीर्तार। ये जो मनुष्य देह है वो बड़ा दुर्लभ है, ये वारंवार नहीं मिलता, इसलिए ये जो मनुष्य देह मनुष्य काया मिली है तो कीर्तार ये साधना, ये देह को अच्छा बना के मोक्ष की साधना करने के लिए मानव देह मिलता है। तो ये इसके द्वारा भी स्वास्थ्य हम प्राप्त कर सकते हैं। और यम नियम के पालन से, यम नियम आसन और प्राणायाम के बारे में थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि जो अष्टांग योग दिया है उसमें महर्षि पतंजलि ने यम नियम का आग्रह रखा है। अभी डायरेक्टर श्री ने बोला प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये यम नियम का सम्यक पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अष्टांग योग आसन और प्राणायाम का नियमित अभ्यास करेंगे, स्वस्थता आएगी। और ये स्वस्थता आपका यदि शरीर स्वस्थ हो तो ये स्वस्थता टिकाने के लिए टू मेंटेन दी हेल्थ, ये प्रिवेंशन के लिए जबरदस्त असरकारक ये योगाभ्यास बना रहेगा। भगवत गीता में कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख सांख्य योग में। तो ये जो आहार का संयम, विहार का संयम, चेष्टाओं का संयम, इंद्रिय निग्रह, आत्म संयम और ये शब्द स्पर्श रूप गंध रस, ये सब का संयम जो करेगा, ये यम नियम बताते हैं। यम जो है वो सोशल डिसिप्लिन है और नियम जो है वो इंडिविजुअल डिसिप्लिन है, समाज को भी डिसिप्लिन। ये जो महर्षि पतंजलि ने जब अष्टांग योग दिया तो इसमें साधन पाद में पहला सूत्र आसन की डेफिनेशन नहीं दी, अथः योगानुशासनम, ये अनुशासन योग का शुरू करते हैं। तो योग ये अनुशासन की प्रक्रिया है और अनुशासन तो आचरण से होता है। यम और नियम जो है वो सिर्फ गिनने की, बताने की या किसी को बोलने की बात है ही नहीं, सम्यक पालन यम और नियम का करना है। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, चोरी न करवी, वणजो तू नव संगरवु, ये जो प्राइमरी में प्रार्थना और ब्रह्मचर्य, ये 5 ये महर्षि पतंजलि ने भी यम बताए हुए हैं। और ये यम और नियम का सम्यक पालन करके व्यक्ति को अपने डिसिप्लिन का, अपने आचरण से सम्यक पालन करके यम नियम का आगे आसन का अभ्यास करना चाहिए। और आसन के अभ्यास के बाद प्राणायाम कर सकते हैं। आसन में भी जिम्नास्टिक या एक्सरसाइज नहीं करनी है, प्रॉपर रेस्पिरेशन से योग्य रेचक और पूरक के साथ आसन को परफॉर्म करने हैं। इसलिए हमारे बसव रेड्डी जी और हम सब ने साथ में मिलके ये जो योग एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स का दर्जा देने का एक प्रस्ताव रखा और ये मान्य हो गया और मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने योग एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स डिक्लेयर भी कर दिया है। तो इसमें हमने एक ट्रेडिशनल योगासन जो है, हमारे टेक्स्ट के जो योगासन है, क्लासिकल जो आसन है,
कि जो रेस्पिरेशन के साथ करेंगे और जिसका अभ्यास करने से शरीर का स्वास्थ्य बढ़ता है, ऐसे आसनों की कंपटीशन, ऐसे आसन कंपटीशन में डालने के लिए भी डिसीजन लिया गया है। अष्टांग योग के अभ्यास से और ये युक्त आहार और विहार के आचरण से और इंद्रिय संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करने से भी स्वास्थ्य बढ़ेगा। और ये आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि योग लेक्चर से सिखाया जाता है। हमारे ऋषि मुनि कोई लेक्चर देते नहीं थे और लेक्चर से सीखते भी नहीं थे, सिखाते भी नहीं थे। योग एक कोई लेक्चर से सिखाने की बात नहीं है, वो तो प्रैक्टिकल बात है। प्रैक्टिकल करना है, यम नियम का सम्यक पालन और आचरण व्यक्ति को खुद को करना है। आसन का अभ्यास साधक को खुद को करना है। आसन से स्वस्थता बढ़ेगी, यम नियम का पालन करने से स्वस्थता मेंटेन होगी। तो ये जो संयम है, वो संयम का आचरण करना होता है। और ऐसे ही प्राणायाम, तो प्राणायाम का अभ्यास खुद को करना, अर्पिता, खुद को करना होता है। Am I audible? Yes sir, yes sir, you are audible but not visible. Yes sir, you are audible. Okay. And now you are visible also. जी जी, Continue please. हमारे शास्त्र में जैसे डायरेक्टर श्री ने बताया, पंचकोश, मेरे गुरुदेव स्वामी श्री राजर्षि मुनि जी प्राणायाम के अभ्यास को प्राणोपासना कहते हैं। ये जो प्राण की उपासना है, पंच प्राण, पंच महाप्राण जो है, अपान, व्यान, समान, उदान और प्राण, ये पंच प्राण की जो साधना है, पंच प्राण शरीर में जब तक अपने अपने लेवल में ठीक ठाक रहेंगे तब तक स्वास्थ्य बना रहेगा। और स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भी पंच प्राण अपनी अपनी पोजीशन में रहेंगे तो स्वास्थ्यता बढ़ेगी। ऐसे ही शरीर के तीन जो गुण दिए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और इसके साथ पंचकोश का नाता है। स्थूल शरीर जो है वो अन्नमय कोश से बना हुआ है, और सूक्ष्म शरीर में और तीन कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये तीनों कोश ये सूक्ष्म शरीर से, और कारण शरीर में आनंदमय कोश, ये पंचकोश जो है वो पंचकोश का स्वस्थता में बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। योग के अभ्यास से पंचकोश को भी ठीक स्थानों पे लगाया जा सकता है। स्वस्थता क्या है तो मैं जरूर कहूंगा कि स्वास्थ्य के जो पुराने ख्याल थे, इसमें ये टॉल एंड वेल मस्कुलर बॉडी जो है उसको पहले तंदुरुस्त माना जाता था, उसको स्वस्थ माना जाता था। 6 फुट हाइट वाला और मस्कुलर, जिसके मसल्स बड़े अच्छे हो, ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन जो है उसको स्वस्थ माने जाते थे। लेकिन बाद WHO भी उसको स्वीकृत करता था। लेकिन बाद में पिछले करीबन 80-90 इयर्स बैक हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी का कंसेप्ट आया। तंदुरुस्त शरीर में तंदुरुस्त मन, और तंदुरुस्त शरीर होगा तभी मन तंदुरुस्त रहेगा। तो ये मन को भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में डाला गया कि तंदुरुस्त मन होना चाहिए। कठोपनिषद में डिजायर इज द कॉजेज ऑफ वरीज एंड हार्बर मिजरीज कहा है। अपेक्षा मानवी को दुख देने का कारण बनती है। जो अपेक्षा है वो उसको संतोष नहीं कर सकते हैं तो ये फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है और मानवी को दुख पहुंचता है। और ये साइकोसोमिक डिसऑर्डर्स के रूप में, मनोविकृत के रूप में ये दिखाई देता है। इसलिए चरक ने सूत्र स्थान 25 में बताया है, विषादो रोग वर्धनम। ये जो विषाद है ये रोग वृद्धि का कारण। ये विषाद कैसे आएगा? क्या आपकी अपेक्षा बढ़ेगी
आपकी कोई न कोई अपेक्षा होगी और ये अपेक्षा सेटिस्फाई नहीं होगी तो मानसिक आपको टेंशन, जिसको आप स्ट्रेस भी बोल सकते हो, लेकिन ये स्ट्रेस विल कन्वर्ट इनटू डिजीज। तो ये आपका स्वास्थ्य बिगाड़ेगा। तो ये स्वस्थता के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा कि जॉन एफ कैनेडी, फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसने कहा है कि सिंस द टाइम ऑफ एंशिएंट ग्रीक वी हैव फेल्ट दैट देयर वाज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ए स्ट्रॉन्ग वाइटल माइंड एंड फिजिकल फिटनेस। शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक तंदुरुस्ती के साथ ये स्ट्रॉन्ग एंड वाइटल माइंड का जबरदस्त रिलेशन है, ऐसा अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कहा है। तो ये करने के लिए तो हमको यम नियम का सम्यक पालन करके आसन प्राणायाम का अभ्यास करना है। आज के लोग 15 मिनट भोजन के लिए भी एक आसन में नहीं बैठ सकते। आसन का अभ्यास नहीं है तो प्राणायाम कैसे होगा? प्राणायाम नहीं होगा तो नाड़ी शुद्धि कैसे होगी? आसन की जो डेफिनेशन महर्षि पतंजलि ने दी है, स्थिरम सुखम आसनम, आसन में स्थिरता होनी चाहिए। और जब आप आसन स्थिर कर सकते हो तब आप प्राणायाम का अभ्यास, क्योंकि एक आसन में ज्यादा समय आप बैठोगे, बाद में आप प्राणायाम की अभ्यास कर सकते हो। और ये जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है, कहा गया है कि 70% जो रोगी है वो मनोविकृतियों से रोगी ग्रस्त हुए हैं। तो ये जो 70% ये बड़ा लॉट है, ये मनोविकृतियों के कारण, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के कारण ये डिजीज में कन्वर्ट हुए हैं। तो ये मन को पकड़ने के लिए, मन को शांत करने के लिए विश्व में कोई पथी नहीं है, विश्व में कोई उपाय नहीं है एक्सेप्ट इंडिया। एंड ये हमारा अष्टांग योग, ये जो योग शास्त्र है, योग शास्त्र में हमारा जो चौथा स्टेप महर्षि पतंजलि ने दिया, प्राणायाम, प्राणायाम के अभ्यास से मन को हम पकड़ सकते हैं, मन को हम अपनी पकड़ में ले सकते हो। शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति के समान कोई तप नहीं है। न संतोषात परम सुखम, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है। न तृष्णाया परो व्याधि, तृष्णा जितना बड़ा कोई रोग या व्याधि या कोई दुख या पीड़ा नहीं है। न च धर्मा दया परा, और दया से परम कोई धर्म नहीं है। लेकिन ये जो मानसिक स्वस्थता के लिए मन को पकड़ने की बात है, ये मन पकड़ा गया तो समत्वम योग उच्चते, मन बैलेंस हो जाएगा तो समत्वम योग उच्चते हो सकता है और मनुष्य स्वास्थ्य की ओर बढ़ सकता है और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स दूर हो सकते हैं। ये जो डायरेक्टर श्री ने ही बताया था कि मनुष्य देह मिला है तो पीड़ा उसके साथ रहेगी, दुख उसके साथ रहेंगे। ये गरुड़ पुराण बताता है कि भवतापे न तप्ता नाम योग परम औषधम, आधि व्याधि और उपाधि, ये जो संसार के त्रिविध ताप है, ये त्रिविध ताप में से आदियों से, व्याधियों से और उपाधियों से मुक्ति के लिए योग परम औषधम, परम औषध ए योग शास्त्र का अभ्यास। और योग शास्त्र का अभ्यास ए यम नियम का सम्यक पालन करके, आचार विचार का नियमित अनुसरण करके और आसन और प्राणायाम का अभ्यास करके मन को शांत और स्वस्थ, शरीर को सुदृढ़ और चारित्रवान बनाने से स्वस्थता बढ़ती है। याज्ञवल्क्य संहिता में भी कहा है, शृण्वन्तु विश्वे मनुष्याः अमृतस्य पुत्राः अयन्तु परमो धर्म यत् योगेन आत्मदर्शनम। ये विश्व के मनुष्य अमृतस्य पुत्राः, एक समय था कि जब अमृतस्य, आर्य जो प्रजा है वो अमृतस्य इतने साधना करते थे कि सब लोग की मृत्यु नहीं होती थी, इसलिए अमृतस्य पुत्राः कहा।
और अयंतु परमो धर्म, परम धर्म क्या बताया है? यद योगेन आत्मदर्शनम, योग शास्त्र के अभ्यास से आत्मा का फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और आत्मा का योग शास्त्र से दर्शन करना, इस शरीर मन और आत्मा हमारे स्वामी कुलवयानंद जी लोनावाला के Yoga has a complete message to humanity. It is a message to human body, human mind and human soul. शरीर, मन और आत्मा तीनों का जो विकास करते हैं, इससे स्वस्थता बढ़ेगी। इसको योग कहते हैं। योग की डेफिनेशन ही मेरे गुरु योगाचार्य स्वामी राजर्षि मुनि जी कहते हैं कि बाय प्रैक्टिसिंग योग वन कैन बी फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, स्पिरिचुअली एडवांस एंड सोशली साउंड। ये योग के अभ्यास से शारीरिक स्वस्थता तो बढ़ेगी, मानसिक स्वस्थता भी बढ़ेगी और स्पिरिचुअली एडवांस जाएंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से ऊर्ध्वगति होना, ये भी हमारा हिंदुस्तान का शास्त्र, ये हमारा हिंदू संस्कृति है कि आप स्पिरिचुअली भी एडवांस हो और सोशली साउंड, सामाजिक तंदुरुस्ती, ये चारों को लेके WHO ने भी जो अभी लेटेस्ट डेफिनेशन स्वस्थता की दी है कि हेल्थ इज नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज बट इट इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। ये जो WHO का भी फिटनेस का, स्वस्थता का जो डेफिनेशन है, यही हमारा योग शास्त्र का, योग गुरुओं ने दिया हुआ जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है। आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत ने जो डेफिनेशन दी है स्वस्थता की, कि स्वस्थता किसको बोलते हैं, तो समदोष, सम अग्नि, सम धातु मल क्रिया, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन, स्वस्थ इत्याभिधीयते। सुश्रुत संहिता में महर्षि सुश्रुत ने जो ये डेफिनेशन दी है, समदोष, शरीर के जो दोष है, त्रिदोष, ये तीनों दोष वात, पीत और कफ आयुर्वेद में बताए गए हैं। वात, पीत और कफ तीनों सम रहते हैं तो स्वस्थता। स्वस्थता नहीं है तो वात, पीत और कफ को सम करने के लिए आपको योग का अभ्यास, यम नियम आसन और प्राणायाम का अभ्यास, प्रत्याहार का अभ्यास करना है और ये अभ्यास से आपको स्वस्थता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना है। तो ये समदोष, समअग्नि, अग्नि जठराग्नि को अग्नि बोला है। जठराग्नि प्रदीप्त भी नहीं होनी चाहिए, जठराग्नि मंद भी नहीं होनी चाहिए, ये सम अग्नि है। ज्यादा जठराग्नि प्रदीप्त होगी तो भूख ज्यादा लगेगी और खुराक ज्यादा लेंगे तो स्वस्थता नहीं बची। ऐसे ही मंदाग्नि है, खुराक लेंगे पचेगा नहीं, स्वस्थता को इफेक्ट होती है। ऐसे ही समधातु और मलक्रिया और प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन किसको कहते हैं? छोटा सा बालक है 2-3 साल का, जो सोता है बिल्कुल तंदुरुस्त है, तो सोते हुए भी हंसता रहेगा और जब वो अवेक जागृत हो जाएगा तो अवस्था में हंसता हंसता जागृत होगा। ये प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन है। और प्रसन्न आत्मा, शरीर, इंद्रिया और मन तीनों जब प्रसन्न रहते हैं, इसको स्वस्थता महर्षि सुश्रुत बताते हैं। जैसे हमारे जो योगाचार्यों ने जो स्वस्थता और योग की बात कही है, WHO ने भी वही बात स्वस्थता के लिए बताई है। और आयुर्वेदाचार्यों ने 5, ये जो सुश्रुत जी है 5000 साल पहले सुश्रुत जी ने सुश्रुत संहिता में यही डेफिनेशन दिया है कि समदोष समाग्नि। तो ये जो है ये इसका ख्याल रख के हमको ये समदोष, सम अग्नि, सम धातु और मलक्रिया सम है, ऐसा प्रयत्न करने से स्वास्थ्य, शरीर स्वास्थ्य बढ़ेगा। और ये शरीर स्वास्थ्य बढ़ाने में हमारा जो ये योग शास्त्र है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार,
ये सब कैसे उपयोगी होते हैं, ये अभ्यास करने से ये होंगे। तो ये डेफिनेशन में महर्षि हमारे जो गीताकार है बताया है, योग कर्मसु कौशलम और समत्वम योग उच्यते। कार्य करने में कुशलता, जब शरीर स्वस्थ है तो कार्य करने में कुशलता रहेगी, और कुशल कार्य कर सकते हैं तो शरीर स्वस्थ है, ये उसकी साबिती आप बता सकते हो। और समत्व योग उच्चते जो कहा है दूसरे अध्याय में भगवत गीता के सांख्य योग में, ये समत्व मीन्स बैलेंस, और बैलेंस ऑफ माइंड, मन सम अवस्था में रहेगा, और जब नाड़ी शुद्धि होती है तब मन स्वस्थ रहेगा। हमारे पंडित राम शर्मा आचार्य जी हरिद्वार शांति कुंज कहा करते थे कि कर ईड़ा पिंगला को जागृत, मैं अजर अमर हो जाता हूं, फिर ब्रह्मरंध्र के महाशून्य में जब चाहूं खो जाता हूं। ये ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, इसको अपने अपने स्थान पे रख के उसको जागृत करके ये योगी लोग स्वस्थता प्राप्त कर सकते हैं। हमको भी ये यम नियम का सम्यक पालन करके, आसन का साइंटिफिक अभ्यास करके और प्राणायाम का भी अभ्यास करके स्वस्थता ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना है। ऐसा कहा गया है कि आसनेन रुखो हंति प्राणायामेन पातकम विकारम मान संयोगी प्रत्याहारेण मुच्यति। आसनेन रुको हंति, आसन के अभ्यास से शरीर के रुगुओं का नाश होता है और शरीर स्वस्थ बनता है। प्राणायामेन पातकम, प्राणायाम के अभ्यास से पाप जल जाते हैं। विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण मुच्यति, प्रत्याहार में स्थित होने से मन के विकार शांत हो जाते हैं। प्राणायामेन चित्तम तो शुद्धम भवेति सुव्रत चित्त शुद्धे मनः, सूत संहिता में दूसरे चैप्टर में ये बताया गया है कि प्राणायाम के अभ्यास से चित्त पाप रहित होता है, चित्त शुद्ध होता है, और नाड़ी शुद्धि होने से चित्त शुद्धि भी होती है, और चित्त शुद्ध होने से मन शुद्ध होता है, और मन शुद्ध होने से शांत होता है। ये बैलेंस ऑफ माइंड बताते हैं। और ये हमारे विवेक चूड़ामणि में जो हमारे डायरेक्टर से ने बताया था स्थूल शरीर, तो बताया है विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में, स्थूलस्य संभव जरा मरणानि धर्माः स्थोभ्याद्यो बहुविद्या शिशुतादिवस्थाः। स्थूल शरीर के तीन धर्म, तीन गुण बताए गए हैं। शिशु अवस्था, वृद्धा अवस्था यानी जरा अवस्था, और मरण मृत्यु, ये तीन स्थूल शरीर के लक्षण बताए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति है जन्म लेगा तो स्थूल शरीर से ये तीन लक्षण है, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था और अंतिम सत्य जो है वो मृत्यु है। ये स्थूल शरीर के लक्षण है, और इसके लिए ये अनुभूति जन्य ज्ञान है, वो हमारा योग शास्त्र है। और ये योग शास्त्र अपने आचरण से, ऐसा कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। योग कर्मसु कौशलम कहा है। हमारे फिजिकल एजुकेशन में कहते हैं कि एनी स्किल या मास्टरी इज द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन, ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। सतत साइंटिफिक प्रैक्टिस करने से रिजल्ट मिलता है, और स्किल परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा निकल सकता है। अभी ये जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के लिए हमने प्राणायाम की बात की है, तो जब आप एक आसन में स्थिर बैठ सकते हो तो प्राणायाम का अभ्यास करने से नाड़ी शुद्धि होती है। ये नाड़ी शुद्धि क्या है? आप कपालभाति करके नाड़ी शुद्धि कर सकते हो। जब नाड़ियां क्लीन होगी, शरीर की अनेक नाड़ियां है, ये नाड़ियां जो क्लीन होगी तो रक्त का संचार, वायु का संचार, ये सब शरीर का जो तंत्र है, ये तंत्र जो शुद्ध होंगे तो ये सब जो नर्व्स है वो क्लीन रहेगी,
और क्लीन रहने से, नाड़ियां शुद्ध रहने से मन शांत रहेगा, क्योंकि ये जो वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी जो है उसमें उसका बड़ा जबरदस्त प्रभाव बना रहता है। विपश्यना साधना या प्रेक्षा मेडिटेशन दोनों में आपको कई टाइम तक स्ट्रेट पोस्चर में बैठना होता है। ओमकार का जो ओमकार प्राणायाम, ओमकार एक डीप ब्रीदिंग का एक प्रकार है। आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करोगे, नाड़ी शुद्धि होगी। विपश्यना और प्रेक्षा मेडिटेशन में नाड़ी शुद्धि होती है। क्यों? कि 1 घंटे तक प्रेक्षा मेडिटेशन में आपको बैठना है। ऐसे ही चौथे दिन से विपश्यना साधना में अधिष्ठान बैठक दी जाती है। इसमें भी स्ट्रेट पोस्चर में 1 घंटा से ज्यादा बैठना होता है। तो व्हेन यू विल सिट इन ए इरेक्ट पोस्चर फॉर ए लॉन्गर टाइम, विज्ञान ये कहता है कि अपने आप आपकी जो सांसें हैं वो समतोल बनती जा रही है, और ये जो समतोल सांस है वो अपने आप डीपर लॉन्गर हो जाती है। इसको डीप ब्रीथिंग बोलते हैं, और डीप ब्रीथिंग से भी नाड़ी शुद्धि होती है। हमारा जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, वो अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से भी नाड़ी शुद्धि होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम को तो नाड़ी शुद्धि का प्राणायाम कहा गया है। लेकिन आज जो ये हवा चल रही है, ये कोरोना टाइम में प्राणायाम का अभ्यास, डीप ब्रीदिंग और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास, मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से डरता हूं। डीप ब्रीदिंग करने से कोई नुकसान तो है नहीं, लेकिन आप जब अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हो और आपका खाली पेट नहीं है तो नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ बिलखा में, जूनागढ़ के बगल में, बहुत एक अच्छे योगी नथुराम शर्मा जी हो गए। नथुराम जी कहते थे कि दिवेल रेच लेने के बाद ये प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, और जो रेचक और पूरक है वो इतना तेज करना चाहिए कि रुई जो यहाँ नॉस्ट्रिल पे लगाएंगे तो रुई हिलनी भी नहीं चाहिए। इतना धीरे से पूरक और रेचक करना चाहिए, और खाली पेट को 100% इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अदरवाइज अनुलोम विलोम प्राणायाम से कोई फायदा नहीं है, लेकिन नुकसान जरूर होता है। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास जब करना है तो खाली पेट, ये मैं जरूर कहूंगा कि खाली पेट से ही ये अभ्यास करना चाहिए। लेकिन ये प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी शुद्धि होती है। नाड़ी शुद्धि होने से मन शुद्ध होता है, और मन शुद्ध होगा तो स्वस्थता आएगी। तो ये जो स्वस्थता है, ये स्वस्थता योग द्वारा या यम नियम के अभ्यास से, आसन के अभ्यास से शरीर तंदुरुस्त बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आसन भी एक बिग मसल एक्टिविटी है, और एक्सरसाइज के जो एडवांटेज है वो सब आसन से मिलेंगे। रेस्पिरेशन का ज्यादा एडवांटेज की मिलेगा, क्योंकि एक्सॉर्शन तो नहीं होगा और आसन आराम से आप कर सकते हो। तो जो एक्सरसाइज का एडवांटेज है वो भी मिलेगा, और प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ियां शुद्ध होकर मनोविकृतियां हैं वो दूर कर सकते हो। ऐसे नाड़ी शुद्धि से हमको स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि षड्रिपु जब तक हमारे शरीर में है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर, ये 6 जो मानवीय की स्वस्थता के दुश्मन बताए गए हैं, ये षड्रिपु जब तक हमारे में है तब तक संपूर्ण स्वास्थ्य शक्य नहीं है। इतना मैं कहूंगा। अंत में मैं एक ही बात कहूंगा कि तलवार से सब्जी काटी नहीं जाती, नहीं काटना चाहिए। काट तो सकते हैं, छोटी सी छुरी जो काम करती है वो तलवार तो करेगी, लेकिन इसमें तलवार की कोई शोभा नहीं है। ऐसे ही स्वस्थता के लिए योग, ये योग तो भवरोग मिटाने के लिए, सामान्य रोग तो अपने आप मिट जाएगा। आप यम नियम का सम्यक पालन करोगे तो ये रोग तो रहेगा ही नहीं आपके शरीर में। श्वेतेश्वर उपनिषद में कहा है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु
प्राप्तस्य योगाग्निमय शरीरम। ये योगी का शरीर जो है, ये ह्यूमन बॉडी इज लाइक एन अनबेक्ड अदर्न पॉट। जो मिट्टी का अनबेक्ड, जो जिसको कुंभकार ने जलाए बिना कच्ची मिट्टी का जो घड़ा है, उसको हम पानी में डालेंगे तो पिघल जाएगा। ऐसे ही हमारा शरीर भी पिघल जाता है। जैसे कुंभकार उसको ताप में रख के पका के बनाता है, तब पानी हमको ठंडा मिलता है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी बेकिंग थ्रू दी मीडियम ऑफ योग शास्त्र के अभ्यास से इस शरीर को भी हम प्यूरिफाई कर सकते हैं और इससे स्वास्थ्य बढ़ा सकते हैं। मेरे ख्याल से फिर से एक बार मैं डॉक्टर ईश्वर बसव रेड्डी जी का और MDNY का आभार व्यक्त करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। फिर से आप सबको धन्यवाद, और मेरे को ये जो मेरे विचार शेयर करने का चांस मिला है, तो आप सबका खूब खूब आभार, धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अगर आपकी अनुमति हो तो एक दो प्रश्न ले लें, क्योंकि सर बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी प्रशंसनीय शब्द जो है उनसे हमारा पूरा कमेंट सेक्शन भर गया है। ठीक है। सर एक प्रश्न बार बार किसी ने पूछा है कि व्हाट इज लॉर्ड कृष्णा अर्जुना चैरियट एक्सेट्रा एंड हॉर्सेज एक्सेट्रा एज पर कर्म योग। कर्म योग के अनुसार श्री कृष्ण अर्जुन और रथ और जो घोड़े हैं वो किसके प्रतीक हैं? ये किसी ने प्रश्न पूछा है सर। मैं नहीं जानता जी सर, एक प्रश्न और है इसमें कि षड रिपु के बारे में अगर थोड़ा सा अगर आप और बता सकें तो। ठीक है। षड रिपु में जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर, भगवत गीता में दूसरे अध्याय में जन्म में आसक्ति थी काम, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से जब आप क्रोध में आ जाते हो तो ऐसा कर्म करोगे, उससे मूढ़ता आती है। मूढ़ता से स्मृति का नाश होता है, नाश से बुद्धि लुप्त हो जाती है, बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश से विनाश हो जाता है। ये एक 2 श्लोक में बताया है दूसरे अध्याय में सांख्य योग में। तो ये हम जरूर कहेंगे कि काम, क्रोध, लोभ, ये इसमें से एक भी अपने शरीर में है तो स्वस्थता, संपूर्ण स्वास्थ्य इज नॉट पॉसिबल। ये जब तक है तब तक स्वस्थता नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो हमारा मन है, अंतर मन खास करके, वो जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, वो स्ट्रेस भी कैसे होता है कि आपको तृष्णा है, तृष्णा सोल्व नहीं होगी तो स्ट्रेस उत्पन्न होगा। और ये सब जो 6 के 6 षड रिपु है वो हमको स्ट्रेस देने वाले हैं। जी सर, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की तरफ से हमारा आग्रह स्वीकार करने के लिए और हमारे दर्शकों को इतना सुंदर व्याख्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे उम्मीद है कि आपके इस व्याख्यान से हमारे दर्शकों को बहुत लाभ मिलेगा और उनको इस विषय पे एक नई जानकारी मिली होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही संस्थान के निदेशक महोदय डॉक्टर ईश्वर बसव रेड्डी जी का और संस्थान के संचार एवं प्रलेखन अधिकारी मोहम्मद तैयब आलम जी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला और हमारे बीच पधारे। और अंत में हमारी तकनीकी टीम और हमारे साथ जुड़ने वाले सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम का समापन शांति पाठ के साथ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर।